خوش آمدید دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں عرب ورلڈ کے 5 میگا پروجیکٹس لایا ہوں جسے اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں بنایا گیا۔ دوستو یہ مختلف میگا پروجیکٹس بہت منفرد ہیں اور یہ سب پروجیکٹس تیل کی انحصار کو کم کرنے کے لیے بنائے جائیں گے تاکہ ٹوریزم کو بوسٹ مل سکے۔ دوستو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ایکسپینشن، اس کی کنسٹرکشن کاسٹ لگ بھگ $33 بلین ہوگی۔ دبئی ایک گلوبل میٹروپولس یعنی ایک عالمی سیاحتی معیاری شہر کی طرف گامزن ہے اور یہ مڈل ایسٹ کا کاروباری مرکز بننا چاہتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زیادہ سے زیادہ عوام یہاں ٹریول کر سکے گی۔ اتنے زیادہ لوگوں کو مینج کرنے کے لیے دبئی کے پاس موجودہ 2 بڑے ہوائی اڈے ہیں جس کے نام ہیں انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور المختوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ دوسرے والا اب بھی نسبتاً نیا ہے اور اب تک صرف 15 لاکھ مسافروں کو ہینڈل کر رہا ہے سالانہ، لیکن اب اس میں $33 بلین کی ایڈیشن ہو رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بن جائے گا، سائز کے اعتبار سے بھی اور مسافروں کی تعداد کے اعتبار سے بھی۔ اس کے سائز کا اگر جائزہ لگایا جائے تو یہ مثال اس کے اوپر فٹ ہوتی ہے۔ ہوائی اڈے کی تاریخ کا سب سے مصروف سال 2019 تھا جب اس نے تقریباً 16 لاکھ مسافروں کو ہینڈل کیا تھا، لیکن ایکسپینشن کے تینوں مراحل مکمل ہونے کے بعد اس کی صلاحیت 150 گنا زیادہ ہوگی۔ یہ اسے دبئی کے دوسرے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے بہت بڑا بنا دے گا، بلکہ در حقیقت دنیا بھر میں کوئی اور ہوائی اڈا اس کے مقابلے میں نہیں ہوگا۔ اب اگر ہم اس کی کنسٹرکشن کی بات کریں تو یہ 3 مراحل میں تقسیم ہے اور اس میں 4 اضافی رن ویز شامل ہوں گے، مزید 2 نئے ٹرمینلز، 4 لابیز اور ایک کارگو کی سہولت جو ہر سال 16 لاکھ ٹن مال کی نقل و حرکت کے لیے کافی ہوگا۔ ہوائی اڈے کو مزید قابل رسائی کے لیے 40 کلومیٹر سڑک اور میٹرو نیٹ ورک بھی بنایا جائے گا۔ فیز 1 کے اختتام تک سالانہ مسافروں کی گنجائش بڑھ کر 1300 لاکھ تک ہو جائے گی۔ کچھ رپورٹس اس فیز کے لیے 2030 کو مکمل کرنے والا سال قرار دیتے ہیں، لیکن چونکہ آج تک کی پیش رفت صرف کاغذی کارروائی میں ہے، اس لیے 2030 کے مڈ تک یعنی 2035 تک یہ کمپلیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تیسرا مرحلہ تقریباً 2050 تک مکمل ہونے کی امید ہے اور اس سے تقریباً 2550 لاکھ مسافروں کی گنجائش بڑھ جائے گی۔ یہ اٹلانٹک ہوائی اڈے کے سائز سے دگنا زیادہ ہوگا جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ہوائی اڈا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دبئی اتنا بڑا ایئرپورٹ آخر بنا کیوں رہا ہے؟ جس طرح انہوں نے پلان کیا ہے اگر اسی طرح پیش رفت ہوئی تو دبئی کے دونوں ہوائی اڈے لگ بھگ 3500 لاکھ سالانہ مسافروں کو سنبھال سکیں گے۔ یہ آبادی امریکہ کی آبادی سے زیادہ ہے اور جو سوال میں نے پہلے کیا تھا اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ دبئی میگا سٹی میں تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ مسافروں کی بڑی تعداد بالآخر دبئی انٹرنیشنل کی گنجائش سے زیادہ ہو جائے گی، اس لیے ایک اور ہوائی اڈا مستقبل کے بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے دبئی کا مستقبل کا منصوبہ ہے۔ ریڈ سی پروجیکٹ کا اعلان 2017 میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کیا تھا۔ تعمیر 2 سال بعد شروع ہوئی اور اب یہ منصوبہ اپنے پہلے ریزورٹس کو عام عوام کے لیے کھولنے کے لیے تیار ہے۔ ریڈ سی پروجیکٹ کی منزل سعودی عرب کے مغربی ساحل پر املوج اور الوج شہروں کے درمیان واقع ہے۔ اس منصوبے کے ریزورٹس کی بات کریں تو انہوں نے اتنا ایریا گھیرا ہوگا جتنا پورے ملک بیلجیم کا ہے۔ یہ منزل دنیا کے چوتھے بڑے بیریئر ریف سسٹم سے گھیری ہوئی ہے اور منزل تک پہنچنے کے لیے 90 سے زیادہ جزیروں، خوبصورت ساحلوں، پہاڑی وادیوں، بڑے صحرائی ٹیلوں اور یہاں تک کہ غیر فعال آتش فشاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ ایک پورا ہوائی اڈا صرف اس منصوبے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اسے ریڈ سی پروجیکٹ کا بین الاقوامی ہوائی اڈا کہا جائے گا۔ اس ایئرپورٹ کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے کیونکہ یہ تینوں مین براعظموں کے درمیان آتا ہے، یورپ، ایشیا اور افریقہ، اور اس کی بدولت دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ صرف 8 گھنٹے کی مسافت سے دور ہوگا۔ ریڈ سی کا ہوائی اڈا کافی چھوٹا ہے، خاص طور پر جب سعودی عرب کے باقی ہوائی اڈے دیکھیں، جیسے کنگ عبدالعزیز ہوائی اڈا جو تقریباً 4 گنا بڑا ہے یا کنگ فہد ہوائی اڈا جو 27 گنا بڑا ہے۔ ریڈ سی پروجیکٹ میں ہر سال تقریباً 1 ملین زائرین کو رہائش فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔ یہاں پر ہر چیز لگژری سیاحت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس ہوائی اڈے میں ایک خاص فیچر بھی ہوگا، بیگیج کلیمز ایریا جو ہوائی اڈے پر انتظار کے اوقات کو بڑھاتا ہے، وہ اس میں نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے پروازیں بڑی جلدی اڑان بھر سکیں گی۔ زیادہ سے زیادہ آرام کے لیے مسافروں کا سامان براہ راست ہوٹل میں پہنچا دیا جائے گا۔ ہوائی اڈے سے انڈیویجول ریزورٹس تک
ट्रांसपोर्टेशन ज्यादातर गाड़ियों, बसों और फरारीज में प्रोवाइड की जाएगी। हवाई अड्डे की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बदौलत बड़े रकबे पर बिखरे हुए होने के बावजूद ज्यादातर बड़े रिजॉर्ट्स के फासले काफी कम होंगे। अब हम इन शानदार रिजॉर्ट्स की एक एक करके बात करते हैं। पहले नंबर पे उम्महात जजीरे हैं। ये जजीरे पानी के खेलों का मरकज होंगे, जहाँ पर आप सेलिंग, विंड सर्फिंग और कयाकिंग से लेकर हर चीज का तजर्बा कर सकते हैं। ये सब कुछ क्रिस्टल साफ पानी और रंगीन मरजान की चट्टानों से घिरा हुआ है। इसके बाद छुरा जजीरे आते हैं, जो रेड सी के मरकजी जजीरे का मरकजी हब जजीरा है, जो अपने कोरल ब्लूम डिजाइन की बदौलत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। शूरा एक चैंपियनशिप गोल्फ कोर्स, एक मरीना, एक बीच क्लब और 11 आलमी मयार के होटलों की भी मेजबानी करेगा। और आखिरी जजीरे रिजॉर्ट्स के लिए हमारे पास शिबारा जजीरा है। ये जजीरा मुस्तकबिल के विलाज में क़याम की पेशकश करता है, जिसे क्रिस्टल साफ पानी में तैरते हुए ऑर्ब्स कहते हैं। शिबारा साहिल के करीब 30 से 40 मीटर रीफ ड्रॉप ऑफ की बदौलत समुद्री जिंदगी को तलाश करने के लिए हतमी जगह भी फराम करेगा। ये यकीनी तौर पर मुतासिर कुन लगता है, लेकिन आपकी राय इन जजीरों के बारे में क्या है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और फिर वहाँ पर अमाला रिजॉर्ट्स हैं, जो पहले एक अलग प्रोजेक्ट था। ये दूसरे रिजॉर्ट्स के शुमाल में वाक़े है। अमाला 3000 से ज्यादा होटल के कमरों की तफरीही सहूलियात और एक यार्ड क्लब का घर होगा। इन लैंड रिजॉर्ट्स की तरफ बढ़ते हुए हमारे पास साउदर्न डून्स हैं। 2 इनलैंड रिजॉर्ट्स में से एक 40 विलास, होटल कॉम्प्लेक्स और एक बड़े तालाब की मेजबानी करेगा। ये सारी जगहें रिमोट डेजर्ट लैंडस्केप में वाक़े हैं। ये स्ट्रक्चर हल्के वजन वाले मवाद से बनाए जाएंगे और आर्टिफिशियल कूलिंग पर इन्हिसार को कम करने के लिए कुदरती साया पेश करने के लिए शक्ल दी जाएगी। और आखिरी सहराई चट्टान, इसमें एक रिजॉर्ट जो मुकम्मल तौर पर माउंटेन साइड में जम किया गया है ताकि पहाड़ी डिजाइन को प्रिजर्व किया जा सके। सहराई चट्टान अपने सहराई माहौल को या तो पैदल सफर के जरिए या डून बगीज, जो सहरा की गाड़ियां हैं, उनके जरिए तलाश करने के मौके फराम करेंगे। ये तमाम रिजॉर्ट्स अनोखे तरीकों को इस्तेमाल करते हुए बनाए जाएंगे, जो हमें रेड सी के मंसूबे के विजन तक पहुंचाते हैं। ये 2021 में अनाउंस हुआ था और इसको अनाउंस करने वाला इंसान सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान था। ये सऊदी अरब का सबसे पुरजोश और तरक्की याफ्ता इलाका होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन में सिटी होगी जो बहरा अहमर या रेड सी से लेकर सऊदी अरब के तबूक सिटी तक जाएगी और जिसकी लंबाई 150 किलोमीटर होगी। इस सिटी के प्लान में ये शामिल है कि इसमें 2 500 मीटर वाली लंबी दीवारें बनाई जाएंगी जो एक दूसरे के सामने होंगी। और सऊदी प्रिंस का कहना है कि दुनिया की तमाम जरूरती अशिया 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे मुयस्सर होंगी। और सबसे खास बात यह है कि इस पूरी सिटी में कोई गाड़ी, कोई सड़क या कोई पोल्यूशन बनाने वाली चीज नजर नहीं आएगी। इस प्रोजेक्ट की अक्टूबर 2022 में एक ड्रोन फुटेज रिलीज की गई थी, जिसमें हमें एक ग्लिम्स मिला था कि इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं थी कि कितने % शुरू है। हालिया इतलात के मुताबिक द लाइन के ऊपर बहुत ज्यादा अपडेट्स हुई हैं। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के इंटरव्यू के दौरान ये बात शाया हुई कि सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन इस सिटी में 20% मुकम्मल हो चुकी है। इसमें नियोम सिटी तक रसाई के लिए रास्ते, दफातर और बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स हब शामिल हैं, जिनका मकसद ये है कि नियोम का काम कंप्लीट करने के लिए जो भी चीज दरकार होगी वो आसानी से मुयस्सर हो सके और काम ताखीर का शिकार ना हो। और ये डेवलपमेंट्स हम सैटेलाइट इमेजेस में आराम से देख सकते हैं। और अगर हम इसे आखिरी साल के इमेजेस से कंपेयर करें तो हमें एक प्रोजेक्ट का रोड मैप नजर आता है जिसमें नियोम कम्युनिटी 1 भी शामिल है। और अगर हम इसे सैटेलाइट में देखें तो ये एक मुकम्मल सिटी नजर आती है जिसमें 100 से ज्यादा घर शामिल हैं। उसमें मस्जिद, पोस्ट ऑफिस, सुपर स्टोर और मुख्तलिफ किस्म की बिल्डिंग्स शामिल हैं। अब अगर हम खुदाई की बात करें इस सिटी की तो इसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नजर आती है। और अगर हम इसे गूगल मैप्स पे देखें तो जिस जगह से ये सिटी शुरू होगी और जहाँ तक ये फैली होगी वो सारे निशानात हम आराम से देख सकते हैं। वो वाली जगह जहाँ पर कोस्ट पे ये सिटी डिजाइन होगी, जिसे हिडन मरीना कहते हैं, उस पे भी जोरों से काम जारी है। और इसके कंप्लीशन पे इसे दुनिया का सबसे बड़ा मरीना माना जाएगा। और इसकी जगह इतनी ज्यादा होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज शिप यहाँ पर लैंड कर सकेगी। और एक अंदाजे के मुताबिक हिडन मरीना पे जो खुदाई का काम है वो दुनिया की सबसे बड़ी खुदाई की लिस्ट में आता है। और इस खुदाई के स्केल की बात करें तो ये एक हफ्ते में 1 मिलियन क्यूबिक मीटर्स तक खुदाई करते हैं, जिसमें हैवी मशीनरी भी शामिल है और खुदाई के और भी मुख्तलिफ जराए हैं। इसके साथ साथ इस सिटी की बेस भी डिजाइन हो रही है जिसमें बड़े बड़े पाइप और उसकी बुनियादें शामिल हैं। लाइन का एक सेक्शन जिसे मॉड्यूल 43 कहते हैं, गुज़िश्ता साल सिर्फ इस सेक्शन में 4500 पायल्स
इंस्टॉल किए गए जो इस सिटी की बेस बनेंगी और इस स्ट्रक्चर की फाउंडेशन के लिए एक दिन में 60 से ज्यादा पायल्स डेली के बनते हैं और इसमें इंस्टॉल होते हैं। इसके साथ इस सिटी में एक रेल सिस्टम भी होगा जो अंडरग्राउंड चलेगा जिसे द स्पाइन का नाम दिया गया है और उसमें भी बहुत सारी चेंजेस नजर आती हैं। ज़ेरे जमीन टनल की लंबाई 30 किलोमीटर से ज्यादा कम की गई है। पहले जो प्रपोज टनल स्टेशन थे वो 48 थे लेकिन उसे कम करके 9 कर दिया गया है और ये दावा किया गया है कि ये कंप्लीट होने के बाद इसे मजीद एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन और प्रोग्रेस के साथ सऊदी अरब इसे कैसे फंड करेगा और इसमें मखसूस कौन से इदारे शामिल हैं। इसका सादा जवाब ये है कि द लाइन और इसके साथ मेगा प्रोजेक्ट्स सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के अंडर आते हैं और ये क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के डायरेक्ट कंट्रोल में आते हैं। इस स्टेज पे हम बात करें तो इसमें 700 बिलियन डॉलर इंजेक्ट किए गए हैं इस प्रोग्रेस के पीछे। ये क्यूब सऊदी अरब के विजन 2030 में ताज़ा तरीन इजाफा है। नियोम ने पिछले चंद महीनों में बहुत ज्यादा तवज्जो हासिल की लेकिन सऊदी अरब अपने दूसरे बड़े शहरों को नजरअंदाज नहीं करना चाहता। इसीलिए न्यू मुरब्बा सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में तामीर किया जाएगा। रियाज पहले ही तेजी से तरक्की करने वाला शहर है। 50 साल पहले ये एक ऐसा कस्बा था जिसमें सिर्फ 5 लाख लोग आबाद थे लेकिन अब इसकी आबादी 70 लाख से भी ज्यादा है। ये मशरिक वस्ता का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक न्यू मुरब्बा मंसूबा दुनिया का सबसे बड़ा जदीद शहर बन जाएगा। तवक्को है कि ये नया जिला रियाज की तरक्की को एक और सतह पर ले जाएगा। इसमें 80 से ज्यादा तफरीही मकामात, मुतअद्दिद वॉकिंग ट्रेल्स, एक बड़ा म्यूजियम और इन सब के मरकज में एक जबरदस्त मकाब। मकाब का लफ्जी तर्जमा क्यूब है। सादा जियोमेट्रिक शक्ल वाली इमारतें एक बहुत बड़े पैमाने पर। ऐसा फील होता है कि ये वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का थीम है सऊदी अरब के लिए। मकाब को रियाज का नया चेहरा करार दिया गया है। इस क्यूब का बैरूनी हिस्सा कदीम रवायती सऊदी स्टाइल से मुतासिर है जिसे सऊदी अरब के लोग सैकड़ों सालों से यूज करते हैं। इसकी खूबसूरत सरफेस धूप में चमकेगी और रियाज की स्काई लाइन पर गलबा हासिल करेगी। इस क्यूब का साइज बहुत ही बड़े पैमाने पर है। ये 400 मीटर लंबा और तकनीकी तौर पर एक सुपर टॉल स्काई स्क्रेपर होगा। अगर इसे दुबई के सेंटर में रखा जाए तो ये चौथी बुलंद तरीन इमारत होगी। लेकिन मजे की बात ये है कि ये न सिर्फ बुलंद होगी बल्कि दीगर स्काई स्क्रेपर इमारतों के बरक्स मकाब 400 मीटर चौड़ा भी होगा और मुकम्मल तौर पर स्काई लाइंस पर हावी होगा। इसको सिंपल कॉन्टेक्स्ट में बोले तो इसके अंदर 20 एम्पायर स्टेट इमारतों को फिट कर सकते हैं। अगर हम इसे सिर्फ साइज के लिहाज से देखें तो ये इस दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। मौजूदा रिकॉर्ड होल्डर को आसानी से शिकस्त दे सकता है जो कि वाशिंगटन में बोइंग एवरिट फैक्ट्री है। दर हकीकत अगर इसे मुकम्मल तामीर किया गया तो ये इतना बड़ा होगा तो बोइंग फैक्ट्री तकरीबन 5 बार इस क्यूब में फिट हो सकती है। द लूप दुबई में एक और शानदार और मुस्तकिल मेगा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट एक मुंसलिक ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर है जो मुकम्मल तौर पर साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है ताकि आबादी को खुश, सेहतमंद और मुंसलिक रखा जा सके। यकीनन ये अकेले में एक बोरिंग प्रोजेक्ट होगा लेकिन इस लूप के साथ साथ इसमें वर्टिकल फार्मिंग, हाउसिंग, तफरीह, वेलबींग स्पॉट्स, सिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, साफ तवानाई, पैदावार और यहाँ एक हाइपर लूप भी शामिल है। दुबई के गिर्द 22 बिलियन डॉलर का ये मेगा प्रोजेक्ट 93 किलोमीटर फैला होगा और ये तवील लूप इन तमाम चीजों को घेरेगा और ये आबो हवा और क्लाइमेट का कंट्रोल भी करेगा। लेकिन दुबई में सियाहत और प्रेस्टीज को फिरोग देने के लिए फैंसी मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने की एक तारीख है जिसमें बहुत से प्रोजेक्ट्स कामयाब हुए हैं लेकिन मुतादिद प्रोजेक्ट्स नाकाम भी हुए हैं। दुबई में एक बहुत बड़ा मसला है। इस शहर ने बहुत कम टाइम में बहुत सारी तरक्की की जिसका रिजल्ट ये निकला कि बहुत सारे तामीराती कामों में डिजाइन फ्लॉज निकले और इन सब में से एक बड़ा फ्लॉ ये था कि इस शहर में सोशल कनेक्टिविटी बहुत ही कम थी। यहाँ पर लोग ट्रेवल करने के लिए प्रीफर करते हैं कि या तो वो साइकिलिंग करें या वो वॉक करें या वो भागें। लेकिन यहाँ पर जो मेन जरिया है ट्रांसपोर्ट का या तो वो कार्स हैं या वो ट्रांजिट बसेस हैं या वो टैक्सीज हैं। इसकी वजह से लोग बहुत तंग हैं क्योंकि मेट्रो भी बहुत सारी जगह पर नहीं जाती है और यही चीज लोगों को बहुत परेशान करती है। और गर्मियों में इसका जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज जो बाहर हो सकती हैं उससे लोग महरूम रह जाते हैं।
इस सब सूरत हाल को देखते हुए दुबई को एक ऐसी चीज दरकार थी जो लोगों को आपस में कनेक्टेड रखे। जिस तरह का दुबई शहर है जो टूरिज्म पे कम्प्लीटली रिलाई करता है, उसके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग एक दूसरे से राब्ते में रहे और कनेक्टेड रहे, जिसका सोल्यूशन द लूप है। आसान अल्फाज में ये 93 किलोमीटर लंबी लाइन है। ये लूप बंद होगा बाहर से और अंदर का दर्जा हरारत कंट्रोल किया जाएगा और ये मेजरली साइकिलिंग और पेडेस्ट्रियन वॉक के लिए यूज किया जाएगा। और इसका जो एरिया होगा वो पूरी दुबई सिटी के इर्द गिर्द होगा जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस जगह होंगी। इसकी चौड़ाई मुख्तलिफ होगी 25 से 150 मीटर तक। इसके साथ साथ जहाँ पर द लूप का स्टॉप आएगा उसमें वर्टिकल फॉर्म्स, एंटरटेनमेंट एरियाज, वेल बीइंग सेंटर्स और कैफेज भी शामिल होंगे। इसके अलावा ग्रीन होटल्स, रेस्टोरेंट्स और छोटी छोटी विलेजेस भी बिल्ड होंगी इस एरिया के बीच में। इस स्ट्रक्चर का जो मेजर फीचर होगा वो पैथवेज होगा या रास्ता होगा। इन रास्तों में आने और जाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते होंगे। लाल कलर रिप्रेजेंट करेगा रनर्स को, तो जो भागना चाहता है उसके लिए इलादा रास्ता होगा और जो वॉक करना चाहता है उसके लिए इलादा होगा और जो साइकिलिंग करना चाहता है उसके लिए मुख्तलिफ रास्ता होगा। इसका जो आउटसाइड हिस्सा होगा वो स्टील फ्रेम से बना होगा जिसमें रीइंफोर्स ग्लास यूज होगा और ये धूप को रिफ्लेक्ट करेगा। किंग सलमान पार्क जो दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन पार्क है। किंग सलमान पार्क एक मौजूदा बड़े पैमाने पर अवामी पार्क और शहरी जिला है जिसे रियाद सऊदी अरब में तैयार किया जाएगा। मंसूबा साजों ने बड़ी महारत से पार्क को छोटी वादियों और चट्टानी शक्लों के साथ डिजाइन किया जो कि नजद के इलाके से मुशाबियत रखता है। नजद के इलाके में बड़ी बड़ी चट्टानी और वादियां हैं जो ज़ायरीन को खुशगवार बना देती हैं। किंग सलमान पार्क को अगर शहर के दीगर पार्कों से मुआवजा किया जाए तो इसे कुदरती खूबसूरती और इम्तियाजी हैसियत हासिल है। अब अगर हम इसकी लागत की बात करें तो सिर्फ इस मंसूबे पर $23 बिलियन खर्च होंगे। मजीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शाम टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। किंग सलमान पार्क सरगर्मियों की एक वसी रेंज पेश करता है जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने ये पार्क 2019 में लॉन्च कर दिया था जिसमें आपको सारी सहूलतें मिलेंगी और ये हर उम्र के ज़ायरीन के लिए वसी पैमाने पर सरगर्मियों और तजुर्बात को पेश करेगा। पार्क की वसी खुली सब जगहें हैं। एक बड़ा मकाम बना है जिसमें खेलों की मेजबानी, सकाफती तकरीबात, फनकाराना और तफरीही सरगर्मियाँ शामिल हैं। इस जगह का व्यू इस तरह का है कि ये पुरसकून माहौल देखने वालों को नेचर राइब करता है और वो लुत्फानंदोज होते हैं। इस पार्क में सबसे मजे की बात यह है कि इसमें 3 मुख्तलिफ किस्म के गार्डन्स हैं जिसमें इस्लामिक स्टाइल गार्डन, वर्टिकल गार्डन और मेज गार्डन है। इस्लामिक स्टाइल गार्डन एक ऐसा गार्डन है जब आप इसके सामने से गुजरेंगे तो आपको एक खूबसूरत सा मंजर नजर आएगा और खुशबूदार महक आएगी। इस गार्डन को इस्लामिक स्टाइल गार्डन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसका डिजाइन ऐसे बना है कि लोग इससे मुतासिर होते हैं। दूसरे नंबर पे वर्टिकल गार्डन्स हैं जिनको उर्दू में अमूदी बागात कहते हैं। ये एक पौधों से ढकी हुई बड़ी दीवार है जो कंटेनर्स में उग रही है। दीवार के साथ एक खास मटेरियल जुड़ा हुआ है जो इस्तेमाल होता है जब जमीन में पौधे लगाने की जगह मौजूद ना हो। और आखिर में एक मेज गार्डन भी है जिसको एक भूल भुलैया बाग भी कहा जाता है। इसके अलावा इन गार्डन्स में एक खास जगह भी शामिल है जिसे परिंदों और तितली की पनाहगाह कहा जाता है। इसमें एक खास किस्म के फूल लगाए जाते हैं जो हर किस्म की तितलियां और परिंदों को अपनी तरफ रागिब करती हैं और यहाँ पर कई किस्म की तितलियां नजर आती हैं। आखिर में अगर हम इसके डिजाइन की बात करें तो इसमें 11.6 मिलियन मुरब्बा मीटर सब्ज एरियाज हैं। इन बागात के साथ सकाफती रिहायशी होटल्स और तिजारती इमारतें भी हैं जो ज़ायरीन को और अपनी तरफ खींचती हैं। इसमें एक विजिटर पवेलियन और एक रॉयल आर्ट कॉम्प्लेक्स भी शामिल है जिसमें म्यूजियम और थिएटर भी शामिल है। यहाँ पर एक खास ट्रैक बनाया जाएगा जिसकी लंबाई 7.2 किलोमीटर होगी और इसे अर्बन लूप का नाम दिया गया है। अब अगर हम इस पार्क की लैंडस्केप की बात करें, इसमें एक वादी है जिसमें एक रास्ता होगा जो 30 मीटर गहरा होगा जिसमें बहती हुई नदियां हैं और बहुत सारे ज़ायरीन के लिए मुकामात हैं।